پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد غنی لون نے کہا کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد حالات مشکل ضرور ہوئے ہیں لیکن وہ اس صورتحال سے باہر آنے کا راستہ نکال لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں میں بھی کافی ناراضگی ہے۔ لون نے کہا کہ 5 اگست کے بعد کشمیر بیک فٹ پر ہے مگر یہ وقت بھی جلد گزر جائے گا۔ اس سے قبل لولاب کپواڑہ کی ایک معروف سیاسی شخصیت حاجی فاروق میر نے سینکڑوں کارکنوں کے ہمراہ پیپلز کانفرنس میں شمولیت اختیار کی۔ سجاد غنی لون نے ان کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز کانفرنس ایک بہترین ٹیم تیار کر رہی ہے۔ حاجی فاروق ڈی ڈی سی کپواڑہ کے وائس چیئرمین ہیں۔ سجاد لون نے کہا کہ اگلے سال مارچ یا اپریل میں اسمبلی انتخابات ہو سکتے ہیں مگر دہلی اصل میں کب اسمبلی انتخابات منعقد کرائے گا اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ Things don't remain the same. حالات بدلتے رہتے ہیں۔ 5 اگست کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کشمیری سوسائٹی، کشمیری پالیٹی یعنی کہ پولیٹیکل جو ہمارا مین اسٹریم ہے، وی آر آن دا بیک۔ لیکن یہ تاریخ گواہ ہے، کوئی بھی قوم ہمیشہ عمر پر بیک فٹ پر نہیں رہتی۔ ہمارا بھی فرنٹ فٹ پر کھیلنے کا ٹائم آئے گا انشاءاللہ، بہت جلدی آئے گا۔ لیڈرشپ کانٹ افورڈ ٹو ایکٹ ان اے مینر کہ جسے اس کے قوم کو نقصان پہنچے۔ قوم کو بچانا بھی ایک لیڈرشپ سکل ہوتی ہے۔ سب سے بڑا سکل ہوتا ہے اپنے نوجوانوں کو بچانا، اپنی قوم کو بچانا، اور پیشنس اٹس اے لانگ گیم۔ نتھنگ اسٹارٹیڈ آن August 5 and nothing ended on August 5. Things will go on, politics will go on. ٹھیک ہے، اینگر تو ہے، ہمارا رول بھی بنتا ہے، بٹ ایز آن ڈیٹ وی آر پاورلیس، وی کی ناٹ ڈو اینی تھنگ۔ ہم کچھ نہیں۔ اور جب میں نے بولا اینگر ہے، ساتھ میں نے بولا کہ لوگوں کو بچانا، اپنے نوجوانوں کو بچانا، وہ بھی ایک لیڈرشپ سکل، اور میں نے بولا پیشنس بھی چاہیے۔ وی ول ٹرائی آور بیسٹ، لیکن دیکھتے ہیں آگے۔ اور اینگر ہمارے خلاف بھی ہوگا، ایگزسٹنگ ایڈمنسٹریشن کے خلاف بھی ہوگا۔ August 5 کے خلاف اینگر ہے، سمرنگ اینگر ہے، بڑا ڈینجرس ہے، بہت زیادہ ڈینجرس ہے، بٹ وی آر اویئر، لیکن ایز آن ڈیٹ دیر از ویری لٹل وی کین ڈو۔ پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد غنی لون کا کہنا ہے کہ انہیں دہلی میں وزیر اعظم مودی کے ساتھ منعقدہ کل جماعتی میٹنگ سے کچھ خاص امیدیں نہیں تھیں۔ ایک سوال کے جواب میں لون نے کہا کہ اگر کوئی لیڈر ایک پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں جاتا ہے تو اسے بغیر کچھ جانے بے وفا قرار دینا جائز نہیں ہے۔ Honest with you, I did not have any delusions about that meeting. What happened there was a social interaction, a political interaction, exchange of ideas. I personally did not expect anything from there. I don't think, مجھے ایسا نہیں تھا کہ وہاں کچھ ہم لے کر آئیں گے. But yes, I don't hold it against them that they expected something and they did not, they believe that it is not unfolded. So, but as far as I am concerned, مجھے بھی اندازہ تھا کہ اس کا scope limited ہوگا. I just hope that they follow it up. 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد بے شک صحیح، but they follow up with something. I think need of the hour تو ہے کہ there should not be a communication gap between Delhi and Srinagar. یہ جو آپ کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں 2-3 مہینوں سے، لگ بھگ 4 مہینوں سے آپ کے ساتھ جوائننگ ہو رہی ہے، موسٹ آف دا جو پولیٹیشینز ان میں سے ہے وہ پی ڈی پی کے ساتھ تھے، نیشنل کانفرنس کے تھے، دیگر پارٹی کے ساتھ تھے۔ جب ان لوگوں نے ان کی وفا نہیں کی، آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے کہ یہ لوگ آپ کی پیپلز کانفرنس کی وفا کریں گے؟ دیکھو یار، ہیرو مت بنو، ڈونٹ پاس اے ججمنٹ اپون وفا اور بے وفا۔ دیر آر نو ہولی کاؤز ان کشمیر، نو ہولی کاؤز، نہ اس سائڈ نہ اس سائڈ۔ وہ میڈیا ہے، یہ پولیٹیشنز کا۔ آج کوئی ایک چینل میں ہوتا ہے، کل دوسرے چینل میں، وہ کیا بدماش ہے۔ If a person feels کہ سجاد صاحب ٹھیک نہیں چل رہے ہیں، he leaves without judging me, you prejudge him کہ یہ بے وفا ہے۔ جب پی سی کو سب چھوڑ کے جا رہے تھے سن 2000، 2001، 2002 میں، تب تو یہ سوال کسی نے نہیں پوچھا۔ کچھ پارٹیاں ہی بنی پی سی پر۔ حق صاحب کس میں تھے، نظام صاحب کس میں تھے، بیگ صاحب کس میں تھے، تب کوئی نہیں پوچھ رہا تھا۔ جب اب آ رہے ہیں تو یہ کیوں آ رہے ہیں؟ یہ کوئی نہیں بولتا ہے کہ یہ 45 سال پرانی پارٹی ہے، 50 سال پرانی پارٹی ہے، کبھی لڑنے نہیں دیا، جب لڑا چوری کی، کوئی بات نہیں کر رہا۔ سب بنے ہیں یہاں نیشنلسٹ کشمیری۔ اگر نیشنلسٹ کشمیری ہو تو پوچھو کیا ہوا 87 میں، کیا ہوا 83 میں، کیوں نہیں بات کرتے ہو اس کی؟ کوئی آئے گا، کیوں آیا؟ یہ تو پوچھو کہ یہ پارٹی تھی کتنی بڑی، کیا کیا ان کے ساتھ۔ I beg of you, please read history. We are all incomplete without history. What you see today has a link to the past.
Nothing is unlinked. Nothing is uncoordinated. बांडीपुरा के अष्टंगू इलाके में आज एक सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। तफसीलात के मुताबिक इलाके में एक ट्रैक्टर पलटकर नदी में गिर गया। इस वजह से एक 8 साला बच्ची और एक 18 साला नौजवान की मौत वाक़ हो गई। इस हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर जख्मी हो गया। उधर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। जिला उधमपुर के साहिल इलाके में आज एक नौमौलूद की लाश मिली। यानी शाहिदीन के मुताबिक आवारा कुत्ते मासूम नौमौलूद बच्चे को लेकर दौड़ रहे थे। लोगों ने यह मंजर देखकर कुत्तों का पीछा किया। चंद मिनट ताक़ुब करने पर कुत्तों ने नौमौलूद बच्चे की लाश छोड़कर राह फरार इख्तियार की। कुत्तों ने चीर फाड़ करके बच्चे की लाश को बुरी तरह नोच दिया था। पुलिस ने नौमौलूद की लाश कब्जे में लेकर इस मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया है। कुछ कुत्ते इस बच्चे को मुंह में दबाए यहाँ से भाग रहे थे और मैंने देखा और उन कुत्तों से इस बच्चे को छुड़ाया। बच्चे की जो डेड बॉडी है उसकी एक टांग जो है कुत्ते पूरी तरीके से खा चुके हैं और आधा शव जो है वो बचा हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि ये रात को डिलीवरी हुई है, 24 घंटे पहले ही डिलीवरी हुई है और किसी ने इस बच्चे को नाली में फेंका है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कोविड की नई गाइडलाइंस जारी की है। वैक्सीन के पूरे डोज ले चुके लोगों की लखनपुर में टेस्टिंग नहीं होगी। कोविड से बचाव के मुनासिब समाजी रवैयों की जांच के लिए ज्वाइंट टीमें तश्कील दी जाएंगी। जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। स्कूल अभी भी बंद रखने का ऐलान किया गया है। आला तालीमी इदारों को खोलने की मशरूत इजाजत दी जाएगी, लेकिन स्टूडेंट्स की तादाद कम होनी चाहिए और पूरे अमले टीचर्स और स्टूडेंट्स को 100% वैक्सीन लगनी चाहिए। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर से इजाजत लेनी होगी। ऐसे तालीमी इदारे जिला इंतजामिया के इश्तिराक से खुसूसी वैक्सीनेशन कैंप लगा सकते हैं। दीगर तालीमी इदारे वैक्सीन लगा चुके स्टाफ को इंतजामी उमूर के लिए हाजिरी की इजाजत दे सकते हैं। किसी भी इंडोर या आउटडोर प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा 25 लोगों की शिरकत की इजाजत रहेगी। मरकजी हुकूमत की जानिब से वादी कश्मीर में मेवा सनत को बढ़ावा देने के लिए हाई डेंसिटी पौधे मुतारफ किए गए। उधर जिला पुलवामा में हाई डेंसिटी सेब के पौधे फराहम करने वाली निजी कंपनियों की जानिब से मेवा काश्तकारों के साथ धोखा करने का मामला सामने आया है। इससे काश्तकारों में काफी तशवीश है। पेश है बिलाल खान की ये रिपोर्ट। वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही जिला पुलवामा में भी 3 बरसों से सेब के रिवायती बागात की जगह हाई डेंसिटी के बागात ले रहे हैं। 3 साल के बाद अब पुलवामा में काश्तकारों का इल्जाम है कि उनके साथ धोखा किया गया है। इनका इल्जाम है कि चंद निजी कंपनियों ने इन्हें ऐसे पौधे दिए हैं जिनसे हासिल शुदा सेब की मार्केट वैल्यू ना के बराबर है। यहाँ निजी कंपनियों ने 4 अक़साम के पौधे फराहम किए हैं। इनमें ग्रीन स्मिथ की मार्केट वैल्यू काफी कम बताई जा रही है। जब हम देखते हैं ग्रीनी स्मिथ और फूजी और ये जान गोल्ड जो उन्होंने दिया है उसका यहाँ पूछने वाला ही भी नहीं है। हमारा जो पहले वाला डिलीशियस है, अम्बरी है, उसमें कोई पूछता है, लोकल मार्केट भी आता है। जब हम यहाँ दिल्ली भेजते हैं, अब कहीं भी देखो उन्होंने बोला ये शुगर फ्री है, साउथ जाएगा, लेकिन यहाँ कोई ग्राहक ही नहीं है, कोई उठाने वाला ही नहीं है। हम तो खुद काम करते हैं, हम दिल्ली भेजते हैं तो वहाँ भी उसकी कोई कंपनसेशन हमको मिलता नहीं। उल्टा क्या पैकिंग चार्जेस भी हमको देना खुद ही देना पड़ता है, किराया समेत उसमें चला जाता है। हम चाहते हैं कि अगर इसमें कोई फॉल्ट निकला है डिपार्टमेंट को भी इंक्वायरी लगनी चाहिए और जो ये कंपनियां हैं इनको भी इंक्वायरी लगनी चाहिए। और हमें गवर्नर साहब से हम गुजारिश करते हैं कि इस पे ध्यान दे और हमें जो हम फ्रूट ग्रोवर्स है हमें कोई बिल्कुल इनसे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। कि पहली बात यह है कि पहले ये बहुत बड़े दावा करते हैं कि हमारी वैरायटी ऐसी है, हमारी वैरायटी ऐसी है। बिल्कुल ये कुछ वैरायटी इसमें है वो जो लोकल है, जो इस वक्त हमारा लोकल चल रहा था उससे भी बदतर है। मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में मेवा सनत को फरोग देने के लिए 2016 में हाई डेंसिटी स्कीम शुरू की थी। इस सनत से जुड़े अफराद ने काफी राहत पाई थी। सेब की क्वालिटी और पैदावार में काफी बेहतरी आई थी, लेकिन हुकूमत की इस स्कीम से जुड़ी निजी कंपनियों की जानिब से काश्तकारों को धोखे में रखा गया है। निजी कंपनियों की जानिब से किए गए मुआहदे पर काश्तकारों के दस्तखत लिए गए हैं। अब चंद अक़साम के सेब की मुनासिब कीमत ना मिलने से
काश्तकार परेशान हैं। इधर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने कहा है कि मुतासरा काश्तकारों को चाहिए कि वो महकमे के जिला दफातर में अपनी शिकायत दर्ज कराएं। उन्होंने महकमे से सलाह व मशवरे के बाद ही हाई डेंसिटी बागात कायम करने का मशवरा दिया है। उनको चाहिए ग्रोवर्स को हमें अप्रोच करें, या जो चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पर जाएं या डायरेक्टरेट में आएँ जिनको नज़दीक पड़ता है, तो हम उनको आपके माध्यम से कहते हैं कि वो रिप्लेस हम करेंगे। उसकी बाइंडिंग है, अगर उसकी मार्टलिटी रहती है तो उसको रिप्लेस करना है, अगर सही वैरायटी नहीं रहती है उसको रिप्लेस करनी है। तो लोगों को गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे पास 5500 हेक्टेयर का टारगेट एक बड़ा है, तो उसके लिए हमने अप्लाई करना है और इंशाल्लाह हम करते जाएंगे फेजड मैनर में। गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान जिला पुलवामा में अब तक तकरीबन 2500 हेक्टेयर अराजी पर सेब के रिवायती मेवा बागात की जगह हाई डेंसिटी के बागात कायम किए गए हैं। ऐसे में निजी कंपनियों की जानिब से गलत अक़साम के पौधे फराहम करने का मामला सामने आने से काश्तकार काफी फिक्रमंद है। वो मांग कर रहे हैं कि इस मामले की आला सतही जांच की जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बिलाल खान की रिपोर्ट। कठुआ पुलिस स्टेशन में तैनात एक एएसआई को सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ लिया। एएसआई के पास से रिश्वत की रकम 5000 रुपए बरामद हुई। जालंधर के रहने वाले देवेंद्र सिंह ट्रक मालिक ने बताया कि मवेशियों की स्मगलिंग के मामले में उनकी गाड़ी कठुआ पुलिस स्टेशन में तैनात एएसआई पूरी सिंह ने पकड़ ली थी। गाड़ी को छोड़ने के लिए वो रुपए देने की मांग कर रहा था। हालांकि कोर्ट से उन्होंने गाड़ी रिलीज करा ली थी, लेकिन पुलिस एहलकार बार बार पैसों की मांग करता रहा। उसने 5000 रुपए रिश्वत मांगी थी तो मुतासरा ने जम्मू से अपने साथ सीबीआई टीम लाई। ਸਾਡਾ ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰ ਲੋਡ ਕਰ ਲਏ। ਕਠੂਆ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੂਰੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਭੂਰੀ ਸਿੰਘ ਐਸਆਈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। 3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ 1,20,000 ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਏਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਰੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਗੱਡੀ ਛਡਾਉਣ ਤੋਂ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਕੀਤੀ तो वो पेपर उतो डॉकूमेंट इत्थे थाने च आए ते भूरी सिंह हुणां ने फिर बलौरीआ सर तो भी पैसों की डिमांड की कि पंजाब नंबर गड्डी ते तुसीं रिलीज़ करा रहे हैं। ममलिकती वज़ीर दिफा अजय भट्ट कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। कश्मीर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के मकसद से उन्होंने दोबारा दौरा शुरू किया है। सरहदों और अंदरूनी इलाकों में दुश्मनों से दरपेश चैलेंजों की तफसीली तस्वीर ममलिकती वजीर के सामने पेश की गई। खतरात से निपटने के हवाले से किए गए हिफाजती बंदोबस्त के बारे में भी आगाह किया गया। उनको आर्मी की कारकर्दगी से वाकिफ कराया गया। ओवरग्राउंड वर्कर्स की निशानदेही और उन्हें हदफ बनाने के फौज के ऑपरेशनों की इत्तलात फराहम की गई। मकामी मिलिटेंटों को हथियार डालने की तरगीब देने के इक़दामात के हवाले से भी भट्ट को जानकारी दी गई। उन्होंने चिनार कॉप्स वार मेमोरियल पर गुलहाए अकीदत पेश किए और लाइन ऑफ कंट्रोल की अगली चौकियों पर तैनात कमांडरों ने ममलिकती वजीर को मजमूई सूरत हाल की ब्रीफिंग दी। भट्ट ने जवानों के साथ गुफ्तगू में उनकी कारकर्दगी की सताइश की। उन्होंने उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों से मौसर तरीके से निपटने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत पर जोर दिया। बलिसा के दूरअफ्तादा इलाकों में स्टूडेंट्स के पास स्मार्टफोन नहीं है। ऐसे में हुकूमत ने कम्युनिटी क्लासों का नया आइडिया मुतारिफ कराया। खुली जगहों और मैदानों में क्लासेस ली जा रही हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिस किया था कि टीचर और वालिदैन बच्चों के लिए खुद से कम्युनिटी क्लासों का नज्म करा रहे हैं। इसके बाद इंतजामिया को आगे आना पड़ा। पेश है फिरदौस खांडे की ये रिपोर्ट। भलीसा गंदी में तमाम मकामी टीचर, मास्टर्स और लेक्चरर्स अपने अपने इलाकों, मोहल्लों और गांव में कम्युनिटी स्कूलिंग के लिए आगे आए हैं। कम्युनिटी स्कूलिंग के लिए इन असातिज़ा को स्टूडेंट्स के वालिदैन का पूरा ताउन हासिल हो रहा है। यहाँ तमाम कोविड SOPs का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कलुतरान, भलीसा और खिते चनाब के दिगर सरकारी स्कूलों में इस तरह की क्लासों का सिलसिला चल रहा है। था घर में हम उतना पढ़ भी नहीं पाते थे। जो टीचर्स की गाइडलाइंस होती हैं वह उसके हिसाब से हम घर पे कुछ नहीं कर पाए, इसलिए हमें यहाँ सबसे बेटर। मार्च में हम पहले आए थे, 5-6 दिन हमारा भी कुछ नहीं पढ़ा था, तो हमारा भी 0% सिलेबस हुआ था। तो फिर हमने अपने टीचर से रिक्वेस्ट की कि हमारी सर कम्युनिटी क्लासेस शुरू करो, तो सर हमारी कम्युनिटी क्लासेस से अच्छा फ़ायदा हुआ।
बालिसा में कोविड केसों में कमी के बाद इंटरनेट की सहूलत से महरूम स्टूडेंट्स के लिए ऐसी ओपन क्लासेज मुनक्किद की जा रही हैं। इन सरकारी स्कूलों के तलबा का कहना है कि वो इस तरह की कम्युनिटी क्लासों से भरपूर फायदा उठाएंगे और तमाम सरकारी अहकामात व हिदायत पर अमल करेंगे। सबके पास अपने फ़ोन नहीं है, सेल फ़ोन नहीं है, इसलिए हमने टीचर्स से रिक्वेस्ट की कि हमारी कम्युनिटी क्लासेस लो, और हमने मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हम यहाँ आए कम्युनिटी क्लासेस लेने, और मतलब जो है हमारा 50% सिलेबस कवर हुआ है। हमारी कम्युनिटी क्लासेस जो हैं वो बहुत अच्छी चल रही है। बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा, जिसकी वजह से जो बच्चे बेकार थे और जो बच्चे बिल्कुल घर में आवारा हो रहे थे, तो उनको एक इसमें बिजी रहने का एक मौका मिला, और उनमें से कुछ बच्चों ने अच्छा काफ़ी तजर्बा भी हासिल किया। हमारे बच्चे गालबन 2-2 साल से इससे तालीम से महरूम हो गए, जिससे हमें लग रहा था कि हमारे बच्चों का फ्यूचर मखदूश हो जाएगा। ये वो बच्चे हैं जिनके पास कोई भी सुविधा नहीं है ऑनलाइन क्लास की, इनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, इनके पास कोई टैबलेट नहीं है, ऑनलाइन क्लास से बिल्कुल महरूम है। इन्होंने हमसे गुजारिश की और हम उस्ताद किराम ने भी मशवरा किया कि हम इनकी कम्युनिटी क्लास ऑर्गेनाइज़ करेंगे, और गालबन 2 महीने से हम कंटिन्यूसली ये क्लास ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, और माशाल्लाह हमें लग रहा है कि इससे बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, और 50 to 60% हमने इनका सिलेबस अभी तक जो है वो कवर कर लिया है। इन तलबा के मुताबिक इन्होंने ऑनलाइन क्लासों और इंटरनेट के खराब कनेक्शन के बायस बहुत तकलीफ उठाई है। इस तरह की क्लासेस शुरू होने पर इन तलबा ने हुकूमत और असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भलीसा से फिरदौस खांडे की रिपोर्ट। सोपोर की सिद्दीक कॉलोनी के मकीन करीबी फिल्ट्रेशन प्लांट से आलूदा पानी फराहम करने पर महकमा जल शक्ति पर बरहम है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि करोड़ों रुपए की लागत से तामीर करदा वाटर सप्लाई स्कीम बेसूद साबित हुई है। उनका कहना है कि यहां पर तामीर करदा ओवरहेड टैंक में जगह जगह लीकेज है, जिससे रिहायशी मकानात को खतरा है। लोगों के मुताबिक 10 बरसों में ही स्कीम गैर कारकर्द हो गई है और इस मामले की जांच करने की जरूरत है। पहरू नाले से इलाके को पानी सप्लाई किया जाता है, जबकि इस नाले में गंदगी डाली जाती है। लोगों ने कहा कि दिन भर में सिर्फ 1 घंटा पानी की सप्लाई नाकाफी है। PHE सोपोर डिवीजन के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि स्कीम का जरिया तब्दील करने के लिए DPR पहले ही दाखिल कर दिया गया है। शिकायत के इजाले के लिए एक टीम तश्कील दी गई है। यही गुजारिश है आपसे है, जो ये फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ बना है ये सिक्योर नहीं है। आगे दाएं बाएं इर्द गिर्द सराउंडिंग इसकी जो बस्ती है वो मेरे ख्याल में कलेप्स और जान भी तलफ हो जाएंगे। हम इल्तिजा करते हैं वक्त आला हुकाम से, कंसर्न अथॉरिटी से, डिप्टी कमिश्नर से, LG साहिब से कि मेहरबानी करके एज अर्ली एज पॉसिबल टेक एन एक्शन सीरियसली हमें प्रोवाइड कर दीजिए साफ पानी और जालिम का सोर्स हम डिमांड कर रहे हैं। हमारी यही डिमांड है। 48 आवर्स में 45 मिनट 30 मिनट से 45 मिनट तक का पानी मिलता है, और बाकी यहाँ की पूरी बस्ती जो है, पूरी आबादी जो है पानी के लिए तरस रही है। जो ओवरहेड टैंक है ये मुकम्मल नाखस्ता हाल है, नाखस्ता बे है। इसकी कतई तौर पर किसी भी वक्त कोलैप्स हो सकती है। किश्तवाड़ का मड़वा वार्ड 1 इलाका आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। लोगों को पीने का पानी हासिल करने के लिए लंबी मसाफत तय करनी पड़ती है। माकूल तिब्बी सहूलियात का भी यहाँ फुकदान है। पेश किश्तवाड़ से आतिफ लोन की ये रिपोर्ट। जिला किश्तवाड़ का दूर दराज इलाका मड़वा वार्ड 1 आज़ादी के 75 साल के बाद भी कई बुनियादी सहूलियात से अभी तक महरूम है। इलाके के लोग आज भी पीने के पानी, सेहत और सफाई और सड़क जैसे बुनियादी सहूलियात के लिए तरस रहे हैं। मड़वा और वार्ड 1 ब्लॉकों की आबादी 35,000 के करीब है। इन लोगों को पानी के लिए काफी मुश्किलात का सामना है। दोनों ब्लॉकों में मुतादिद गांव तामीर और तरक्की के हवाले से बेहद पीछे हैं। यहाँ के मकामी लोगों का कहना यही है कि सियासतदान वादे तो बहुत करते हैं, मगर वो वादे कभी वफा नहीं होते। मुश्किलात मगर बचपन पे आज गवर्नमेंट गोड़ा पार्टी गोड़ा ब्या पार्टी दपान आब दिनो मगर कंस दित ना तवज्जो। मुश्किलात गवर्नमेंट गुड़न पे नंदस आब दूर पे वत करान यपन बोय मोल कड़ान वत नेरान गसान अनान दरिया पे आब ये जी कन मुश्किलात।
न्यूज 18 उर्दू की टीम ने इन दूर दराज इलाकों का दौरा करके यहाँ के हालात का जायजा लिया। यहाँ तिब्बी सहूलियात के नाम पर चंद छोटे छोटे फर्स्ट एड सेंटर तो है, मगर इनमें दरकार सहूलियात का फुकदान है। लोगों को इलाज और मुआवजे के लिए 40 से 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। लोगों का इल्जाम है कि इलाके में मौजूद सरकारी दफातर अक्सर बंद ही रहते हैं। मुलाजमीन की गैर हाजिरी मामूल बनकर रह गई है। लोगों का ये भी कहना है कि अक्सर डॉक्टर भी गायब रहते हैं। इनका कहना है कि कई बार इन्होंने मुताल्लिका महकमे से रुजू किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यूत अलाव यानी जन अख डॉक्टर रोजान ये इलाकस में वो कूत अलाव पेवान अगर 10 रपन दवा फल जरूरत अत 1,000 पेवान खर्च लागुन क्या अनंतनाग पेवान वातन इतन गोस हस्पताल रोजन इतन गई डॉक्टर चोर रोजन 12 रेतन क्या पगह पे शीन पे डॉक्टर आसनी बेमार पे जहाज पेवान प्राणो रेतस रेतस तो रित पे मुश्किलात अत गन हल ये जहाजी। मड़वा वार्ड 1 के लोगों की मांग है कि इनको दरपेश मुश्किलात का इजाला करने के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाएं। लोगों की शिकायत है कि सियासतदानों ने इन्हें नजरअंदाज कर दिया और जिला इंतजामिया किश्तवाड़ भी इस दूर दराज इलाके में लोगों के मसाइल को जानने और उन्हें हल करने के लिए कुछ नहीं कर रही। न्यूज 18 उर्दू के लिए आतिफ लोन की रिपोर्ट। जिला शोपियां में बड़ी मर्ग नरवानी की सड़क सबसे खस्ता हाल है। इस दही इलाके का जिला हेडक्वार्टर से सड़क राब्ता अरसे से मुनक़ता हो चुका है। यहाँ इंतजामिया की बेहिसी के मुंह बोलते सबूत जा बजा देखने को मिल जाएंगे। लोगों के मुताबिक जिला इंतजामिया ने उनके साथ सौतेला सलूक इख्तियार किया हुआ है। हालात सुधारने के माजी में किए गए तमाम वादे खोखले साबित हुए। एलजी इंतजामिया आने के बाद तरक्की की लोगों को उम्मीद हो गई थी, लेकिन अरसे बाद भी यहाँ कुछ नहीं बदला है। डेवलपमेंट आप अपने ऑफिसों में दिखाते हैं और अपने फाइलों पे दिखाते हैं, वो डेवलपमेंट हमें निचली सतह पे, हमें ग्राउंड पे नजर आना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे डीसी साहिबान जो है और बाकी जो भी मुतल्लिका महकमे में जो भी हजरात है वो हमारी इस मुश्किल को समझेंगे और अव्वलीन फुर्सत में हमारी इस मुश्किल को हल करेंगे। बाकी शुक्रिया। आप कैफी आसन पच रबत कट ऑफ 2 6 दोहन तक कट ऑफ रबतस, इसलिए मेहरबानी करित पुरजोर तुम गुजारिश कर मीडिया थ्रू शिपियन डिस्ट्रिक्ट कट ऑफ गमित मोहम्मद तहसील इमाम सोबन अम नश कट ऑफ गमित। म्यूनसिपल कमेटी अवंतीपुरा की जानिब से दरिया जहलम के किनारों पर भांग की काश्त को हटाने का सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी है। इस इलाके में पॉलीथीन, प्लास्टिक और कूड़ा करकट को हटाकर ठिकाने लगाया जा रहा है। इस मुहिम में कमेटी के वर्कर्स और अफसर हिस्सा ले रहे हैं। हमारा यही मकसद है, म्यूनसिपल कमेटी अवंतीपुरा का यही मकसद है। जो ये एक शहर, छोटा शहर है म्यूनसिपल कमेटी अवंतीपुरा का शहर, ये खूबसूरत रहना चाहिए। चाहे यहाँ के गली कोचे, यहाँ के वाटर बॉडीज, या हमारा जो अनमोल नियामत है दरिया जहलम, ये अनमोल नियामत है। इसी पानी पर हम सब कुछ करते हैं। लोगों से भी ये तवक्का चाहते हैं, यहाँ की सिविल सोसाइटी की, जहाँ भी लोग इन किनारों पर हैं, उनसे यही मोहब्बाना अपील है, आपके माध्यम से इसको साफ रखें। साबिक बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर यूसुफ पठान ने कहा कि जम्मू कश्मीर में क्रिकेट को बड़े पैमाने पर फरोग दिया जा रहा है। वो श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में कश्मीर प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। यूसुफ पठान ने कहा कि केपीएल जैसे टूर्नामेंट से मकामी टैलेंट को काफ़ी फ़रोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि फ़ौज भी यहाँ खेलों के फ़रोग के लिए काफ़ी काम कर रही है। फ़ौज की जानिब से मुनक़्क़दा कश्मीर प्रीमियर लीग का फाइनल मैच बडगाम ब्रियोस और शाह शोपियां के दरमियान खेला गया। बडगाम की टीम ने जीत दर्ज की। जीओसी 15वीं कोर डीपी पांडे ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। ये टूर्नामेंट 1 जुलाई से 29 अगस्त तक जारी रहा। 10 अजला की टीमों ने हिस्सा लिया। स्वर्णिम विजय वर्ष तकरीबात के सिलसिले में मुनक़्क़दा टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों को मुंशियात से दूर रखकर खेलकूद की जानिब मायल करना था। जो यूथ है, जो टैलेंट है, वो और निखर के आएगा। और 200 टीमें यहाँ पे ये टूर्नामेंट खेली है 2 महीने में, पिछले 2 महीने में। तो ये एक बहुत ही तारीफ के काबिल है कि इस तरह से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज भी हुआ है और जो यूथ है, जो टैलेंट यहाँ पे है, वो निखर के आएगा। मिलिट्री के लोग, आर्मी के लोग इसके पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे रिजल्ट भी आएगा।
आप स्टेडियम की बात करते हैं तो जिस तरह से टूर्नामेंट होंगे, मैचेस होंगे, बच्चे खेलेंगे, बच्चे निकल के आएंगे, यूथ निकल के आएगा खेलने के लिए, तो वो धीरे धीरे आपको वो सारी चीज़ें जो आप चाहते हो वो धीरे धीरे सब कुछ प्रोवाइड होगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बहुत ही हमारी तरह, आपकी तरह एक छोटे से शहर, छोटे से गांव, छोटे से तबके से उठ के बहुत अपनी डिसिप्लिन और मेहनत के साथ यहाँ पे उठ के आए हैं। मुझे यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब उनसे एक सीख लेकर के सभी इस रास्ते पे चलेंगे और आगे बढ़ के एक यूसुफ पठान की तरह एक अच्छे सिटीजन, अच्छे स्पोर्ट्समैन विद गुड डिसिप्लिन अपने देश के लिए नाम कमाएंगे। बटाकुंड त्राल के शौजार ग्राउंड में आज बटाकुंड प्रीमियर लीग सीजन 2 का फाइनल मैच खेला गया। मंतक़े 11 अवंतीपुरा और एनसीसी देवर त्राल के बीच फाइनल मैच खेला गया। मंतक़े 11 अवंतीपुरा ने बीपीएल सीजन 2 का फाइनल अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की। हजारों शायकीन क्रिकेट भी मौजूद थे। अवंतीपुरा टीम के कप्तान आदिल ने बताया कि यहाँ के तमाशाइयों ने उनको पूरे टूर्नामेंट के दौरान सपोर्ट किया। मशहूर यूट्यूबर वारिस राज मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने बताया कि त्राल में नौजवानों के अंदर सलाहियतों की कमी नहीं है, लेकिन खेलकूद के बुनियादी ढांचे की कमी से यहाँ खिलाड़ियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे को सपोर्ट किया है, कि बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं उनका। इंशाल्लाह आएंगे खेलने, नेक्स्ट टूर्नामेंट में भी आएंगे इंशाल्लाह। हमारे त्राल में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, अगर रहती है कहीं वो तो ग्राउंड की कमी रहती है। यहाँ का थोड़ा सा ग्राउंड छोटा है, लेकिन बाकी देखो इतनी भीड़ है, लेकिन फिर भी कोऑपरेटिव है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। मतलब हमारे टैलेंट रखते हैं हम बहुत सारा, मतलब मेहनत भी हम बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस चीज़ में पीछे रहे। जिला सांबा के रणसोचित सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में अंडर 19 लड़कियों के क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। गुरहा सलातिया क्रिकेट क्लब और सांबा क्रिकेट क्लब गर्ल्स के बीच मुकाबला हुआ। मैच के दौरान इन लड़कियों का जोशो खरोश काबिल दीद रहा। खिलाड़ियों ने बताया कि जिला इंतजामिया और क्रिकेट एसोसिएशन को ऐसे मुकाबले कराने चाहिए, लेकिन नौजवानों की काविशों की वजह से उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला है। बहुत बड़ा एक सराहनीय कदम है और हमारे जो सांबा के जो बच्चे हैं जिन्होंने ये आज मैच मतलब कि ऑर्गेनाइज करवाया है, तो मैं उनको थैंक्स करता हूँ और मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। जो जितनी भी जहाँ पे बच्ची हैं 30 से 35 लड़कियां जहाँ पे जो क्रिकेट खेल रही हैं, इनको कोच चाहिए, इनको गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी चाहिए ताकि ये एक अच्छे मुकाम तक पहुँचे और हमारे सांबा का जो नाम है उसको रोशन कर पाएं। हम चाहते हैं कि एक प्रैक्टिस तो हम करते रहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि टाइम टू टाइम हमारे टूर्नामेंट होते रहें या फ्रेंडली मैचेस हमारे होते रहें, जिससे हमें और कॉन्फिडेंस आए, हमें पता चले कि किस चीज़ को क्या करना है, कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये सर चीज़ें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमें लाएंगी। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट करवाए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर हम गवर्नमेंट करवाएगी तो हमारा आगे ज़्यादा नाम आएगा, क्योंकि ये तो लोकल मैच है, इसमें ये लोग हमको कहाँ से पहचानेंगे। गवर्नमेंट करवाएगी तो हमको कोई पहचानेगा, भी आगे जाके हम खेलेंगे हमको कोई पहचानेगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत करगिल में फिट इंडिया फ्रीडम रन का एहतमाम किया गया था। एडीसी शरिंग मोटोप ने आज सुबह झंडी दिखाकर इस दौड़ को रवाना किया। नेहरू युवा केंद्र ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर और जिला इंतजामिया के इश्तराक से ये दौड़ मुनक्किद कराई। ये दौड़ ऑडिटोरियम हॉल करगिल से शुरू हुई और करगिल मार्केट से गुजरते हुए ब्यामाथंग के टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर पर इख्तिताम पजीर हुई। डाक बंगला बारामूला में पीडीपी का यूथ इंटरेक्शन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। पार्टी के सीनियर लीडर और तर्जुमान सोहेल बुखारी ने इसकी सदारत की। मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए नौजवानों और खवातीन शरीक थे। मुख्तलिफ शोबों में नौजवानों की तरक्की के उमूर पर तबादला ख्याल करने और उनके मसाइल से वाकफियत हासिल करने की गर्ज से पीडीपी ने यह नज़्म किया था। बुखारी ने खुदकुशी के बढ़ते हुए वाक़यात और नशाखोरी की लत पर तशवीश जाहिर की। उन्होंने कहा कि पीडीपी तमाम लानतों को ख़त्म करने के लिए काम करती रहेगी। लीडरान और वकरान जमा हुए थे और उनके साथ हमने इज़हार अपने जो हमारे पॉइंट्स हैं उन तक पहुंचाए और उनकी बात भी सुनी और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये सिलसिला और आगे बढ़ेगा और जो ओवरऑल मसाइल हैं जिनसे आज की डेट में जम्मू कश्मीर के आवाम और बिलखुसूस हमारा जवान दो चार है, चाहे वो सियासी तौर पे आप देख लीजिए, हमारे हुकूक को लेके जो हमारी लड़ाई है, आईनी और कॉन्स्टिट्यूशनल
बैकग्राउंड में और उनके कॉन्टोर्स के अंदर, और जो समाजी मसाइल हैं जिसमें ड्रग की जो वबा है या फिर बढ़ते सुसाइड रेट्स हैं, इन सब से किस तरह से मौसर तरीके से लड़ा जा सकता है, इन पूरे मामलों में नौजवान का जो रोल है उसकी बात हमने की। और अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ को लेके बड़े सेटिस्फाइड हैं कि सब जो नौजवान हैं हमारे वो फुल पोटेंशियल के साथ, बड़ी ज़ील के साथ इन मामलात में इन्वॉल्व होकर हमारी जो हुकूक की लड़ाई है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके में, उसमें भी शाना बशाना खड़े हैं। जिला उधमपुर के रामनगर में बीजेपी ने वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद की। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना, साबिक वजीर शक्ति परिहार और रामनगर के साबिक एमएलए आरएस पठानिया भी शरीक रहे। पार्टी कारकुनान को असेंबली इलेक्शन के लिए तैयार करने की गर्ज से ये मीटिंग रखी गई। बीजेपी के लीडरान, डीडीसीज, बीडीसीज, सरपंच और दीगर इस मीटिंग में शरीक रहे। और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जितने भी हैं सबको यहाँ पे बुलाया है, सारे लोग यहाँ पे आए हैं। इस मीटिंग का मकसद यही है कि आने वाले समय में चुनाव जब भी होते हैं उसकी तैयारियां हम किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे करें और किस तरीके से पार्टी को स्ट्रेंथन करें। जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने लिया है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उसके लिए पूरे प्रदेश में हमारे अध्यक्ष जी का प्रवास कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हो रहा है और वहाँ के कार्यकर्ताओं से मीटिंग की जा रही है। सरहदी इलाका प्रगवाल में कांग्रेस पार्टी का जलसा मुनक्किद किया गया। साबिक नायब वजीर आला ताराचंद यहाँ मौजूद मेहमान के बतौर शरीक रहे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आवाम के चुने हुए नुमाइंदों की हुकूमत बनना चाहिए ताकि वो आम लोगों के मसाइल हल करा सकें। कश्मीर के लोग, खासकर जम्मू के लोग जो हैं बहुत ही मुश्किल हालात में हैं। महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है, बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और सारी जो समस्याएं हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनवाई किसी की नहीं है। तो यही हम आज का दिन डिमांड करेंगे, जल्द से जल्द जहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस हो। कठुआ में पीडीपी की जिला यूनिट ने एक जलसा मुनक्किद कराया। पार्टी को मजबूत बनाने के मकसद से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी अमृत सिंह भी इस जलसे में शरीक थे। इस दौरान दर्जनों लोगों ने पीडीपी में शिरकत की। उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में किसी को भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। सरकार आए, लोगों की चुनी हुई सरकार आए, लोग उसकी अपनी परेशानी दूर कर। हमारा बीच बड़े में था यूथ का, उसको नहीं करने दिया, तारे लगा दी, लोगों को भगा दिया, लाठी चार्ज कर दिया। ये डेमोक्रेसी नहीं है भाई। अगर डेमोक्रेसी में क्या होता है, हर आदमी को बोलने का हक है, हक बोल के करना है और लोग उसके साथ चलेंगे, वो सरकार में आएगा और वो लोगों का काम करेगा। लेकिन ये जो कल का हादसा वहाँ भीलवाड़ा में हुआ तो सब लोग ये देख रहे हैं, हर आदमी, हर पब्लिक जो समझती है डेमोक्रेसी को वो तहे दिल से दुखी है और परेशान है। पौंछ में बीजेपी एसटी मोर्चे की तरफ से एक रोजा कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। पार्टी के जिला सदर मोहम्मद रफीक चिश्ती की सदारत में बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान शामिल थे। बीजेपी लीडरों ने जमीनी सतह पर पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। कई लोग बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने जो फैसिलिटी एसटी के लिए पूरे मुल्क में रखी थी, वो जब इन्होंने देखा कि हमें जम्मू कश्मीर में भी वो फैसिलिटियाँ, वो रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो या एम्प्लॉयमेंट के लिए हो या प्रमोशन के लिए हो, तो हमें कितनी तरजीह दी दे रही है। उसकी वजह से मैक्सिमम लोग भारतीय जनता पार्टी में एसटी मोर्चा के, एसटी के लोग जो हैं वो मजलिस उलमा इमामिया जम्मू कश्मीर की जानिब से श्रीनगर के मदाफात में वाक़े गुंड हसीबट में यौम हुसैन कॉन्फ्रेंस का इनक़ाद हुआ। इसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ उलमा और इस्लामी स्कॉलर्स ने शिरकत की। वादी के सरकर्दा शोरा ने भी शिरकत करके शोहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। उलमा ने इमाम हुसैन और शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी और उनकी सीरत पर रोशनी डाली। वादी कश्मीर से हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। उलमा ने जम्मू कश्मीर में मजहबी हम आहंगी और आपसी इत्तेहाद पर जोर दिया। के शहीदों से वाबस्ता है, लेकिन उन्होंने जो शहादत दी वो अक़दारों के लिए है। हमें उन अक़दारों को भी याद करना चाहिए और उनसे अपनी ज़िंदगी मुज़य्यन करनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी रोशन करनी चाहिए। ये हमारा खराज तहसीन भी होगा, हमारा खराज अक़ीदत भी होगा।
उलमाए इमामिया का मकसद यही है कि दुनिया में किसी भी जगह कोई मजलूम हो तो सरकार सैयद शुहदा के रास्ते पर चलकर उस मजलूम की मदद की जाए और जुल्म का मुकाबला किया जाए ताकि हर शहरी अमन व अमान के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। शादाब अदबी फोरम इंदरगाम पटन की तरफ से हागाम सुपुर में हुसैनी मुशायरे का अहतमाम किया गया। इसकी सदारत नामवर अदीब अब्दुल खालिक शम्स ने की। मजलिस के मेहमान खुसूसी वादी के नामवर अदीब रशीद कानसपुरी थे। ऐवान सदारत में आशिक अदीब और डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अबरार भी शामिल रहे। प्रोग्राम की निजामत अशरफ साहिल ने अंजाम दी। गुलाम मोहम्मद, आदिल मंजूर, मुंतजर हायगामी, शबनम रुखसार, साबिर हमीद और दूसरे शोरा ने इमाम आली मकाम को खराज अकीदत पेश किया। मुल्क भर में कल जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। इससे कबल कश्मीरी पंडित आज के दिन को जरमा सतम के तौर मनाते हैं। इस सिलसिले में आज जगती माइग्रेंट टाउनशिप में जम्मू में पंडितों ने तकरीब का इनेकाद किया। उन्होंने भगवान कृष्ण की एक झांकी निकाली। इसमें खासी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। यह झांकी कृष्ण मंदिर से शुरू हुई। कश्मीरी पंडितों ने भजन गाए और जम्मू कश्मीर में अमन व खुशहाली के लिए दुआ की। कोरोना वबा से नजात के लिए खास दुआएं की गई। सोपोर टाउन के नौजवान फनकार खालिद शरीफ जानवारी ने आज अपना पहला गाना रेलिंग हाई लॉन्च किया। इस ज़मन में मुनक्कदा तकरीब में काफ़ी जोश व खरोश देखने को मिला। दूरदर्शन के साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रफ़ीक मसूदी इस महफिल में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। उन्होंने होनहार लड़के की हौसला अफजाई करते हुए उसकी कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रेडियो चनार के स्टेशन हेड आरजे साहिल मुजफ्फर और दीगर मेहमान और नौजवान फनकार इस प्रोग्राम में शामिल रहे। जवां साल कैलीग्राफर आफरीन जानवारी इस लॉन्च तकरीब में बतौर मॉडरेटर शरीक रही। मुकर्रिरीन ने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो अपनी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए मेहनत व लगन में लगे रहें। राजौरी की बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में मेगा मुशायरा कम कल्चरल फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। जिला इंतजामिया ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में यह प्रोग्राम मुनक्किद कराए। आज दूसरे दिन यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम हॉल में जश्न के तौर पर जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें सरकारी इंतजामिया के अफसरान और मुताल्लिकीन शरीक रहे। रामबन, डोडा, रियासी, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, कठुआ के अलावा हिमाचल प्रदेश से आए शायर इस प्रोग्राम में शरीक थे। गोजरी, पहाड़ी, कश्मीरी, डोगरी और गडी जबानों में भी प्रोग्राम पेश किए गए। सयाहों को राजौरी ज़िले के तरफ राग़िब करने और मकामी कल्चर को फ़रोग़ देने के मकसद से ये नज़्म किया गया था। जिलापुंज के मेंढर सब डिवीजन मरकज पर आज शहीद बाबूराम शर्मा की बरसी मनाई गई। आर्म्ड पुलिस के शहीद ASI बाबूराम शर्मा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इलाके में एक चौक उनके नाम से मंसूब कर दिया गया। SSP पुंछ डॉक्टर विनोद कुमार, SDM मेंढर साहिल जंदियाल शहीद बाबूराम शर्मा के अहले खाना और आम शहरी शरीक रहे। पुंछ शहर के सबसे बड़े मदरसे और तालीमी इदारे ज़ियाउल उलूम में तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया। शिफा अस्पताल की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का नज़म किया गया। सभी तबक़ात के लोगों ने इस कैंप से इस्तिफ़ादा किया। ज़ियाउल उलूम के मोहतरम मौलाना मोहम्मद सईद हबीब ने इस कैंप की सदारत की। DC पुंछ इंद्रजीत मेहमान खुसूसी थे। माहिर डॉक्टरों ने तकरीबन 600 लोगों की जाँच की और उनको मुफ्त दवाएँ दी। टंगमर से 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े पहाड़ी इलाका रंगावाली में राब्ता सड़कों का नज़्म ख़राब है। बदरकोट से रंगावाली तक की राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हो चुकी है। आज तक इस सड़क की मरम्मत नहीं की गई। लोगों को आमदरफ्त के हवाले से सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने आज तक मुतल्लिक़ा दफातर के चक्कर काटे लेकिन कोई काम नहीं हुआ। लोगों ने हुकूमत से अपील की इस सड़क पर मैकडम बिछाया जाए। की वजह है कि जैसे पीछे से गवर्नमेंट बड़े बड़े वादे करती है, गवर्नमेंट बड़ी बड़ी बातें बोलती है, तो वो तो आप खुद ही देख रहे हैं सामने ये क्या हाल है इसका। ये कैसी रोड कैसी है। यहाँ पिछले कुछ 2-3 सालों में यहाँ 2-4 कैजुअल्टियाँ हो गई, उनकी डेथ हो गई यहाँ पे। तो उसकी वजह क्या थी? ये रोड की वजह थी सर। खाली वादा करता है सुबह बनाएंगे, परसों बनाएंगे, कल बनाएंगे, मगर आज तक भी इस रोड की ये हालात है। और यहाँ पे पिछले गुपकार अलायंस ने दफा 370 मामले की जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कई लोग कहते हैं कि गुपकार वाले काफी देर से जाग गए हैं। LG इंतजामिया से भी लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। नाजरीन, आज लड़ी शाह ऐसे ही मामलात पर खास तबसरा कर रहे हैं।
तो आप देखिए लड़ी शाह और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। Pagdan Ariziditsu Kotas Pagdan Ariziditsu Kotas Dapan sunway kairiw trahat satas Dapan sunway kairiw trahat satas Pagdan Ariziditsu Kotas Hun kay kabar karbastı kalır Hun kay kabar karbastı kalır Yum gaywan huşar karandırdır Yum gaywan huşar karandırdır Soruy molum yeti avamas Soruy molum yeti avamas Pagdan Ariziditsu Kotas Dapan sunway kairiw trahat satas Az tam lideraw koruyeti lut Az tam lideraw koruyeti lut Sutalagan öscandjut Sutalagan öscandjut Raşvı öz hevan pratkuni karas Raşvı öz hevan pratkuni karas Pagdan Ariziditsu Kotas Dapan sunway kairiw trahat satas Aznak sidun piawan yeti kots Aznak sidun piawan yeti kots Pratkah komandan rukaw terus Pratkah komandan rukaw terus Dua sedikaran elegias Dua sedikaran elegias Pagdan Ariziditsu Kotas Dapan sunway kairiw trahat satas Lok cakar teman seripai Lok cakar teman seripai Temna bozan wany prang swarnai Temna bozan wany prang swarnai Tawai lok temau god barun amnas Tawai lok temau god barun amnas Pagdan Ariziditsu Kotas Pagdan Ariziditsu Kotas Dapan sunway kairiw trahat satas Dapan sunway kairiw trahat satas Pagdan Ariziditsu Kotas